जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 375 एंड 376। 375 बताता है, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायाधीशों, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। संविधान के उपबंधों के अधीन, जो संविधान के उपबंध हैं, प्रोविजंस हैं, यानी उनके अधीन रहते हुए न्यायालय, जो भी जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा हाई कोर्ट्स, उनका सबका उनके संविधान के उपबंधों के अधीन कार्य करते रहना। उसके साथ साथ जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबका अपना अपना कार्य करते रहना। और दूसरा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में, उपबंध के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, चलती हूँ, पढ़ती हूँ। 375 आर्टिकल सेज courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the constitution। क्या कह रहा है? 375 article says about the courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the constitution। all courts of civil criminal, all courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial throughout the territory of India shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this constitution। 376 आर्टिकल 376 आर्टिकल बताता है, प्रोविजंस as to judges of high courts, provisions as to judges of high courts। Number 1, notwithstanding anything in clause 2nd of article 217, the judges of a high court in any province holding office immediately before the commencement of this constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the judges of the high court। Judges of the high court in the corresponding state and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under Article 221 in respect of the judges of such high court। Any such judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such high court or as Chief Justice or other judge of any other high courts and other judge of any other high court। Number 2, the judges of a high court in any Indian state corresponding to any state specified in Part B of the first schedule holding office immediately before the commencement of this constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such a commencement the judges of the high court in the state so specified and shall, notwithstanding anything in clause 1st and clause 2nd of article 217, but subject to the proviso to clause 1st of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine। Number 3, in this article the expression judge does not include an acting judge or an additional judge। इस आर्टिकल में जो उनके बारे में नहीं कहा गया है, मतलब उनके बारे में इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे एक एक्टिंग जज होते हैं और एडिशनल जज के बारे में बात नहीं करता है ये आर्टिकल। तो अब इन दोनों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ।
संविधान का अनुच्छेद 375 बताता है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दंडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए करते रहेंगे। तो यही कहता है इस आर्टिकल में 375 में कि भारत के क्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दंडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी अपने अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए करते रहेंगे। अब पढ़ लेती हूँ 376 आर्टिकल। 376 अनुच्छेद बताता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में ये आर्टिकल 376 बात करता है। ये क्या बात करता है? ये बताता है कि नंबर 1 अनुच्छेद 217 के खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश यदि वे अन्यथा निर्वाचन न हो चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों और अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में से अधिकारों के हकदार होंगे जो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 221 के अधीन उपबंधित हैं। ऐसा न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वे भारत का नागरिक नहीं है ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। नंबर 2 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के उस उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर इस प्रकार निर्दिष्ट राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और अनुच्छेद 217 के खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी किंतु उस अनुच्छेद के खंड 1 के उपबंध के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे और जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। नंबर 3 इस अनुच्छेद में न्यायाधीश पद के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है। कार्यकारी न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज, इस अनुच्छेद में जो न्यायाधीश जो पद हैं एक तो एक्टिंग जज और एक एडिशनल जज, इन पदों का इस अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। तो ये बात कही जा रही। कल पढ़ूंगी 377 भारत के नियंत्रक महालेखा के बारे में उपबंध और 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। इन 2 अनुच्छेदों को कल पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और संविधान को पढ़ते रहें, अपना ज्ञानार्जन करते रहें और अच्छे नागरिक बने, अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति पाएं संविधान पढ़ के। और हमें रैशनल थिंकिंग को अपनाना है, रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना है और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, तभी हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो जय भीम।